میاں صاحب کے اوپر 5 بڑے بڑے الزام ہیں. ٹیکس ایویژن جیل, منی لانڈرنگ جیل, کرپشن جیل. پرائم منسٹر صاحب, جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں, شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے, مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں, کہ آپ ریزائن کریں, کہ آپ ریزائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان انیکا نثار. ناظرین, جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, پاناما لیکس کا سلسلہ اور پاناما لیکس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ کشیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے دوسری سیاسی جماعتیں مشکلات کھڑی کرتی نظر آ رہی ہیں. اسپیشلی اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی, تو پچھلی بار بھی دھرنا دے کر نواز حکومت کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی تھی. لیکن اس بار جس دھرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنے آج کے خطاب کے اندر جو باتیں کہیں, اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب جاتی عمرہ میں ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے تمام باتیں جو ہیں وہ زیادہ مشکلات کھڑی کرتی ہوئی نظر آئیں گی نواز شریف صاحب کی آنے والے وقتوں کے اندر؟ یہ دیکھنا ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو کہا ہے کہ 24 اپریل کو وہ اناؤنس کریں گے کہ کیا آگے کا لاہے عمل ہوگا, کیا رائے ونڈ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اس حوالے سے عوام ان کو کیسا رسپانس دیں گے؟ کیا پچھلے دھرنے کے اندر 126 دن گزارنے کے بعد تقریباً کچھ نہ ملنے کے بعد عمران خان صاحب کا اٹھنا اب ان کے سامنے عوامی پریشر کھڑا کرے گا یا نہیں؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا جو اس معاملے کے اوپر سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا یہ سپورٹ لانگ ٹرم ہوگی یا پھر یہ سپورٹ ختم ہو جائے گی؟ جس طریقے سے آخری دھرنے کے اندر پی ایم ایل این کی سپورٹ کی گئی تھی تمام اپوزیشن کی جانب سے, پارلیمنٹ کی جانب سے, کیا اس بار پی ایم ایل این کو وہ سپورٹ مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اس دھرنے کو آگے لے کر جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے؟ اور کیا یہ کمیشن کا جو ڈیمانڈ کی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے, عمران خان صاحب کی خطاب کے اندر, تقریر کے اندر آج یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے, اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے آج کے شو میں. میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتی چلوں. لاہور اسٹوڈیو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کی رہنما ہیں, ان سے ان کا موقف لیں گے. کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ظفر ہلالی صاحب, بہت شکریہ ہلالی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. لیکن عمران خان کی سپیچ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آتے ہیں. عمران خان صاحب نے سپیچ کر دی, دھرنے کی بات کر دی, لیکن سب سے پہلا سوال تو عوام یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے دھرنے میں ایسا کیا ملا جو اس دھرنے میں کچھ ملنے والا ہے؟ میں 2 ڈاکٹر صاحب ہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں نہیں, آپ یاسمین صاحب. اچھا, میں انیکا, میرا خیال ہے جو اہم چیز ہے اس کے اوپر اگر ہم اس وقت نظر رکھیں کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں ایڈجرنمنٹ موشن کے بیسس کے اوپر انہوں نے جا کے اپنا موقف پیش کیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے پاناما لیکس کے مطابق اس وقت ایلیگیشنز ہیں آن دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی کہ دے ہیو آف شور اکاؤنٹس پرٹیکولرلی ہز فیملی, اور اس وقت جس طریقے سے کوئی بھی مہذب ملک کے اندر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان ایلیگیشنز کو کلیئر کریں اور جتنا جلدی ہو سکے کلیئر کریں. 2-3 قسم کے پروپوزلز آئے, لیکن جو سب سے اہم پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں انڈر دا سپریم کورٹ جسٹس آف دا سپریم کورٹ. اب مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو میرا خیال ہے آپ کو اور مجھے اور میرا خیال ہے ساری قوم چاہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاناما لیکس جو ہیں اس کے اندر واٹس دا منی ٹریل. I agree, offshore companies are not illegal companies, but illegal, how was the money there? 5 سے
आज से 5 साल पहले नवाज शरीफ साहब 5,000 रुपए अपना इनकम टैक्स दे रहे थे। हमें समझ नहीं आती कि इतने पैसे जिनके बारे में जिक्र हो रहा है, और फिर जिस तरह हुसैन नवाज साहब ने या हसन नवाज साहब ने क्लैरिफिकेशन दी कि एक छोटी फैक्ट्री से हमने उसको एक बड़ी स्टील मिल बनाया, और फिर उस स्टील मिल ने खुदा जाने क्या सोना उगलना शुरू किया कि इतने पैसे बन गए कि उन्होंने अपने कर्जे उतार डाले और उसके बाद 12-13 और कंपनियां खड़ी कर डाली। इट्स डिफिकल्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंस सवाल वही आता है कि पिछली दफा जो अवाम ने देखा कि धरने के बाद हम लोगों को क्या मिला, क्या इस बार अवाम उस तरीके से सामने आएंगे या नहीं आएंगे? अवाम बहुत इंटरेस्टेड है। वजह यह है कि क्या अवाम की हालत इस पिछले 3 साल के अंदर बहुत बेहतर हो गई है जब से प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं? अगर बहुत बेहतर हो गई तो फिर तो शायद अवाम सवाल ना पूछती। चलिए डॉक्टर साहब की तरफ वक्त से बदतर हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब तो वक्त आएगा वो सवाल पूछेंगे कि आपके हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं, हमारे हालात खराब होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, कल आपने 2 ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ जो किया था वजीर आजम साहब की, आज इमरान खान साहब ने भी वही बात की कि जब से वजीर आजम की 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं तब से तो इखलाकी जवाज वो खो बैठे हैं। इखलाकी जवाज खो बैठे हैं तो फिर वजीर आजम तो अभी भी आज भी वो हैं, क्या धरने की जरूरत पड़ेगी या 24 तक कुछ कर लिया जाएगा? पीएमएलएन की तरफ से कोई स्पेशल डिसीजन लिया जाएगा? अनिका, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जब से ये पनामा लीक सामने आई हैं तो मेरा तो ईमान इस बात पे बिल्कुल कायम हो गया है दोबारा से। इत्तेफाक में बहुत बरकत है, मतलब इत्तेफाक में जितनी बरकत है, मतलब मेरा इशारा इत्तेफाक फाउंड्री की तरह, जितनी इत्तेफाक में बरकत है, ये जो बचपन से सुनते थे अब मुझे पता चला कि इस जुमले का मतलब क्या था। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने अभी बात की कि धरने से क्या हासिल हुआ। देखिए, मैं यहाँ ना तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, उस धरने से मुझे बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, उस धरने से क्या अचीव हुआ। मुझे उस धरने के दौरान जिस तरह पता चला कि इंतखाबात में धांधली कैसे होती है, इलेक्शन चुराया कैसे जाता है, कैंडिडेट्स को कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क के आम लोगों के आम आवाम की बात कर रहा हूँ। उनको ये पता मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, वो भी जिक्र आता रहा बीच में। उनको ये पता चला कैंडिडेट्स कैसे मुकमुका करते हैं आपस में। बहुत कुछ, बहुत शऊर में इजाफा हुआ। उसके नुकसानात, जरूरी नहीं होता कि आप कोई जद्दोजहद करें, या मैं कोई इमरान खान का यहाँ पे वकील बैठा हूँ। आप जद्दोजहद करते हैं, उसका क्या कुछ अचीव होता है नहीं होता, ये तारीख फैसला करती है। एक बात। दूसरी बात देखें कि आपने कहा कि कल मैंने 2 ऑफशोर्स का जिक्र किया था और वो ऑफशोर्स का इमरान खान साहब ने जिक्र कर लिया। अनिका, मैं आपको ये बताऊं, जब ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त वाशिंगटन में था जब ये कहानी शुरू हुई थी, और उसके बाद ये असल में 1350 नाम है टोटल जिन्होंने आना है। 1350, अभी जो आए हैं वो 200 हैं। 1350 नाम हैं और उनको रुकवाने की कोशिश हो रही है कि वो नाम किसी तरह से रुक जाएं। मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म, आज मेरी इतला थी कि लॉबिंग फर्म्स हायर हो गई हैं। वो लॉबिंग फर्म्स के अंदर कांग्रेसमैन हैं, मुख्तलिफ ममालिक के एमपीज हैं, मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े उन्होंने पैसे लगा दिए, तो स्टेक्स बहुत बड़े चले, हुकूमतें गिर रही हैं। और ये इतनी आसानी से जिन लोगों के पास इतनी बड़ी दौलत हो वो गिरफ्तारियां नहीं देते, ना वो पकड़े जाते हैं, उनके पास काला धन होता है, जराइम पेशा अनासर होते हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना बड़ा। 1350 नाम है जो गालिबन अगले 2 महीनों में सामने आने। और उसमें पाकिस्तान से मैंने पता किया कितने लोग हैं, तो पता चला पाकिस्तान से कोई 350 और लोग हैं। 350 नाम हैं, उसमें ग्रुप्स हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें बिजनेस। तो ये सारा का सारा अभी जिसे कहना चाहिए ना कि अभी ये गैब से बरामद होना है। यहां पर ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही कोई और जमात, और मुझे सबसे ज्यादा हैरत सुप्रीम कोर्ट पे, अवाम को भी हैरत है। लेकिन मैं आपको कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये मसला हल होने वाला नहीं है। आज आप देखें क्या हुआ। वजीर आजम साहब की सबसे बड़ी सपोर्ट, जो मैं हमेशा कहता हूं, वो है नरेंद्र मोदी साहब। जैसे ही ये मसला खराब हुआ, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग शुरू हो गई। अब लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग, वो कलबशन यादें, वो सारा मसला, अब एकदम से चारों तरफ से एंगेजमेंट, यानी इतने दिन से खामोशी थी लाइन ऑफ कंट्रोल, आज फिर टक 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 फायरिंग शुरू हो गई वहां पे, और पता नहीं क्या कितना जानी नुकसान हुआ। मियां साहब को इस वक्त, और उन्होंने कराची का दौरा अपना मुलतवी कर दिया। कल उन्होंने कराची जाना था और फिर उसके बाद गालिबन मीरपुर खास भी जाना था। अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है हुकूमत के लिए। डॉक्टर साहब, कराची का दौरा क्यों मुलतवी किया, मुझे आपसे जानना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है की वजह से कि ये धरने की अनाउंसमेंट और ये तमाम चीजें सामने आने वाली हैं, या इमरान खान साहब की तरफ से रद्द अमल है, ये तमाम चीजें मुझे आपसे पूछनी है। लेकिन मुझे जाना है अभी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपसे पॉइंट कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हिलाली साहब की तरफ भी जाएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि कराची का दौरा मुलतवी कर दिया है, वहाँ पीएफ बेस मसरूर में जाना था उन्होंने और कुछ मसरूफियात थी उनकी, तो आपको लगता है ये पीटीआई का जो ये चेयरमैन का खिताब था ये कुछ टफ टाइम दे रहे हैं उनको? नहीं, देखें, पीटीआई के खिताब या इमरान खान के खिताब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग अब ये सोचना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जवाब क्या आ रहा है। मतलब है कि इमरान खान की तकरीर पे आप नाम है, जैसे मैंने पहले कहा मैं पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान की तकरीर में एक तो ये कि वो टेली प्रॉम्प्टर पे नहीं थी, तकरीर जब भी होती है वो या तो टेली प्रॉम्प्टर पे रखा चाहता है सामने, उससे पढ़ते हैं वज़ीर आज़म या सदर जो भी स्पीच करते हैं। इमरान खान ने जो बात की, उसने खानदान की अपनी कोई तारीख तो नहीं बताई ना कि 1936 में ये हुआ था और मैंने क्रिकेट इस तरह खेला और इस तरह से, उसने टू द पॉइंट बात की। और उसकी इमरान खान को भी छोड़ें आप, पब्लिक पूछ रही है कि ये पैसा जो आपके पास आया है, मियां नवाज शरीफ साहब, परवेज साहब, दानियाल अजीज साहब, सारे वज़रा, इतनी बड़ी कैबिनेट, ये बताइए कि पैसा कहां से आया। और इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आप पे इल्जाम लगता है, आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसके ऊपर झूठ बोलने पे आप इल्जाम लगता है, ऑफशोर कंपनीज पे इल्जाम लगता है, हर तरीके से इल्जाम लगता है। और अगर कोई महज़ब मुल्क होता तो जितनी शख्सियात, एक सियासतदान में हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये 200 लोगों को ईसीएल पे डाल दिया जाता फौरी तौर पे और तहकीकात शुरू हो जाती और कहा जाता कि जब तक कि ये किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचती इन सब के अकाउंट भी फ्रीज और ये सारे मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि वही सारे लोग बैठे हुए इख्तियार में, टीवी पे आ रहे हैं, उछलकूद कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तमाशे बना रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं कि ये किस तरह से कोई एक शख्स इस बात की दलील नहीं दे पा रहा कि लूटा हुआ पैसा बाहर कैसे गया। ओ जी मीडिया कर रहा है, ओ जी रॉ की साजिश है। आपको पता है, जैसे मैंने कल कहा था, अमेरिका के अंदर क्योंकि अगली जो लिस्ट आ रही है उसमें काफी अमेरिकन के नाम भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ये प्यूटन ने हमारे खिलाफ साजिश की है, क्योंकि पूरा उसका रिजल्ट, उसका जो अगले नाम आने वाले हैं अमेरिकन के, उसमें हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन, अमेरिकान इलेक्शन उसमें मुतासिर होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जी ये सारे के सारे कहने लगे हुए हैं कि तो पाकिस्तान के अदारों को भी अपनी साख थोड़ी सी बचानी चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क डूब रहा है। देखिए तारीख तो लिखी जाएगी ना, तारीख आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद, कि जब ये हालात थे तो किस शख्स ने, किस अदारे ने, किस सियासतदान ने, किस ब्यूरोक्रेट ने क्या रोल प्ले किया। और तारीख बड़ी बेरहम होती है, वो ऐसे लोगों को लेके चलते हैं, हिलाली साहब की दानों में उठा के फेंक दिया करती है। जी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन हिलाली साहब की तरफ भी चलते हैं। हिलाली साहब, अभी तक हुकूमत ने कमीशन का, जो वजीर आजम साहब ने अपने खिताब के अंदर ऐलान किया था, अभी तक वो कमीशन तक नहीं बन सका। रिटायर्ड जजेस ने कह दिया कि हम लोग नहीं कमीशन को हेड करेंगे। अब वो FIA की बातें आने लग गई थी, उसके बाद और बहुत सारे नाम आने लग गए थे। अब ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बनाने का कमीशन मुतालबा किया है, क्या ये मुतालबा बजा है और ये पूरा किया जाएगा हुकूमत की तरफ से क्या? देखिए मेरे ख्याल में एक आदमी नहीं है पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के अलावा जिसको पता नहीं है कि ये कमीशंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना आप एविडेंस चाहिए वो उधर मौजूद है। हमें पता है कि पैसे गए। अगर आप दार साहब की 40 पेज की कन्फेशन पढ़ें तो पता चलता है वो कैसे गए। अगर वर्ल्ड बैंक और IMF के जो स्टोलन रिकवरी फंड्स के बारे में देखें आप, इनका नाम उधर छपा हुआ है कि ये जो शैमरॉक है और एक और कंपनी है ये भी उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है जो या अपने बयान से या अपने शागिर्दों के कन्फेशन से और या ऑर्डिनरी कॉमन सेंस में एक इतना बड़ा कमीशन की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि उस पर एक ठप्पा लगना है। माने जैसे कोई कोर्ट का कमीशन ही समझे कि एक ठप्पा लगना है कि ये सवाल आप जवाब दें बिफोर एक्शन इज टेकन, एक शो कॉज नोटिस मसलन। अब बात असल सीधी सीधी ये है कि कब ये स्टेप डाउन करेंगे। एक ही बात रह गई है पाकिस्तान के अवाम के ख्याल में और सबके, भाई व्हेन आर यू गोइंग टू स्टेप डाउन, कि ठीक थारा सा एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगा, एक ठीक थारा कमीशन बनेगा और दूसरे भी जो लोग हैं उन पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स अब्रॉड हैं, उसका मतलब नहीं है कि वो चोर हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन है और कैसे हैं। तो
کہنے کی بات ہے. ہم لوگ اب صرف ایک سوال پہ ٹھہرے ہیں کہ when are you going to step down, اور عمران خان نے کیا کیا ہے, اس نے پریشر ڈال رہا ہے, وہ بالکل صحیح پریشر ڈال رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ ایک 2.5 لاکھ موقع ہے. پاکستانیوں کی آف شور بیس پر 2.5 لاکھ پاکستانیوں کی. جی یس آئی نو, بٹ یو نو, مثال کے طور پہ آف شور کمپنی رکھنا ود منی میڈ آف شور, جو پیسے باہر بنتے ہیں وہ آف شور رکھنا تو وہ غلط نہیں ہے. پیسے جو ادھر بنتے ہیں یا ادھر سے سامان جا کے آپ کو بیچتے ہیں اس کو باہر رکھنا وداؤٹ ڈکلیئرنگ وہ غلط بات ہے. بڑے سارے یہ سب باتیں کلیریفائی ہوں گے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم ہے. ان کو اگر آپ مجھے پوچھیں, وہ اس قسم کے لیڈر ہیں, وہ کیرزمیٹک لیڈر ہیں, وہ کوئی آرگنائز اسکلفل پولیٹیشین نہیں ہے. آج ہی جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا, اگر آج ہی یہ کرتے, میں جا رہا ہوں, میں مینار پاکستان جا رہا ہوں یا جدھر بھی جانا ہے, جاتی عمرہ جا رہا ہوں, میں اکیلا جا رہا ہوں, تم لوگ آنا چاہتے ہو آؤ, مگر میں ادھر سے اس وقت نکلوں گا کہ جب یہ پیسے سب واپس عوام کو ملیں گے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا کرزما از ہز اسٹرانگ پوائنٹ, ان کی آنیسٹی از ہز اسٹرانگ پوائنٹ. ہلالی صاحب یہ نہیں کر سکیں گے, وہ تو ایک انتہائی اہم سوال ہے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے اندر ہنڈی کی باتیں کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے. اب وہ ہنڈی کا پیسہ باہر جا رہا ہے. پہلے دھرنے میں یہ بولا کہ ٹھیک ہے پیسے جو ہیں ہنڈی کے ذریعے بھجواؤ پچھلے دھرنے کے اندر, اور اب یہ ہنڈی کے ذریعے بھجوائے ہوئے پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ ذرا تضاد نہیں ہو جاتا دونوں چیزوں؟ میرا خیال ہے انیکا, اس وقت پاکستان جو ہے اٹس اے پارٹ آف دی انٹرنیشنل کرائسس وچ از گوئنگ آل اوور دا ورلڈ. اس میں آپ دیکھیے کہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, آج یوکرین کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, کیمرون ہیز کم اوور, اور وہ ناٹ اونلی ہیز ہی رینڈرڈ این اپالوجی, بلکہ اس نے اپنے سارے اکاؤنٹس اس نے کہا میرے آپ دیکھیے اینڈ سی ویئر ہیو آئی گون رانگ, میں نے غلطی کی کہ اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے آپ لوگوں سے پیچھے رکھی. سو یو سی اٹ از این انٹرنیشنل کرائسس وچ از انوالونگ آل دا لیڈرز. اب مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے اس آج کے اس کے اندر خطاب کے اندر یہ بات کہی کہ آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے, کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر الزام لگا, اور الزام کا جس طرح ابھی ہلالی صاحب نے کہا وہ تو الزام آلریڈی پروو ہوئے ہوئے ہیں. منی لانڈرنگ کے بارے میں آلریڈی ایک کنفیشن ہے, جو اسحاق ڈار ان کے سمدی ہیں انہوں نے وہ کنفیشن دی بھی ہے. عمران خان صاحب کمیشن کیوں مانگ رہے ہیں پھر؟ تو ان کو ڈائریکٹ تمام چیزیں سامنے لے کے جانا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ایون دین I think it's decency on his part that he is asking کہ there should be a commission, اور پھر اس کے سامنے یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے تاکہ قوم کے سامنے یہ ساری بات آ جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے پیسہ لے کے, چوری کر کے, عوام کا پیسہ لے جا کے, منی لانڈرنگ کر کے, ٹیکس ایویژن کر کے انہوں نے باہر آف شور کمپنیز بنائی ہیں. This is not the first time. These things have been said again and again. اب اس وقت کیا اہم چیز ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے جس طرح یہ بات خان صاحب نے کہی, نواز شریف صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے, انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے کہ ان کے اوپر ایلیگیشنز لگی ہیں, وہ ایک پرائم منسٹر کسی اور کو بنا دیں. آخر پہلے پیپلز پارٹی والوں کے بھی تو پرائم منسٹر گئے ہیں نا, اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, اور اس کے اوپر پراپر انکوائری ہو, اور if the inquiry proves it then he has no. یاسمین صاحبہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے اندر کئی زرداری صاحب جو تھے وہ تو نہیں تھے, وہ تو پریزیڈنٹ تھے نا, نہیں تھے, اس لیے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کی سچویشن وہاں ڈیفرنٹ تھی. یہاں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ابھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہو رہی تھی اس کے اندر بھی کیا بات ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پاناما پیپرز نے ہلچل مچائی اور ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے لیے تھوڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, جاتی عمرہ میں ملاقات بھی ان کی, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈٹ کے مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو ہمارے ساتھ رانا افضل خان صاحب موجود ہیں, پی ایم ایل این کے رہنما ہے. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں فون لائن پر جوائن کیا. رانا صاحب, ڈٹ کے مقابلہ تو کریں گے, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں وزیر اعظم صاحب, اب ان کو رہنا نہیں چاہیے وزیر اعظم کی سیٹ پہ. وہ اپنی حکومت بے شک نہ ختم کریں, لیکن ایٹ لیسٹ خود سے سٹیپ ڈاؤن کر لیں, وہ ان کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہی غلطی کرتی ہے ہمیشہ کہ وہ دے ٹرائی ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول. ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں
कि किसी को उसके ऊपर यकीन नहीं आता। अगर उनके 2 बच्चे जो जिनकी उम्रें आज 40 साल के करीब हैं, वो पिछले 30 साल से बैरून मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो रूल्स हैं, मैं 10-11 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। मैं अपने पैसे कहाँ रखता था, पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं कितने पैसे पाकिस्तान भेजता था, पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने वहां क्या प्रॉपर्टीज खरीदी, कहाँ इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आ गया तो ये सारे टैक्स के और कवानीन मेरे ऊपर लागू हो गए। लेकिन जब तक मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, और बेशुमार हमारे यंग पाकिस्तानी हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया, वो कैसे उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब झगड़ा यहाँ पे जो है वो सिर्फ इतना है कि क्या ये पाकिस्तान से पैसा गया और उन बच्चों ने उस पैसे को पाकिस्तान से ले जाकर वहां पे कारोबार किया, ये अब साबित करने की बात है। जब मियां नवाज शरीफ ने अपनी टैक्स रिटर्न्स दी हुई हैं, उनके गोशवारे हैं, जो उनसे एग्री नहीं करता वो इस चीज को साबित कर दे। अच्छा राना साहब, अगर पाकिस्तान से पैसा नहीं गया तो कहाँ से गया? इतने एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी वहां ली गई है, अरबों की प्रॉपर्टी है, ये कोई मजाक तो नहीं। और दूसरा ये कि अरबों की प्रॉपर्टी के होने के साथ साथ यहाँ जो टैक्स है उसकी आप अमाउंट देख लें। इमरान खान साहब को तो सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम है ना, मतलब अवाम को भी ये प्रॉब्लम है कि इतने सारे अरबों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद टैक्सेस आप हजारों के अंदर देते रहे आपके कायद। देखिए, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब बाहर कोई शख्स जाता है और वो वहां पे पैसे कमा लेता है और बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है, उससे आप हिसाब मान लें। आपका अगर कानून के मुताबिक तो आप नहीं मान सकते कि उसने पैसे। मैं आपको एक बिल्कुल अजीब सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा किसी से लोन ले लेता है, पैसे कमाता है, रिटर्न कर देता है। कोई बंदा गैम्बलिंग करके पैसे कमा लेता है, कोई बंदा की लॉटरी निकल आती है, कोई कुछ हो जाता है। सो मेनी वेज टू अर्न। आप एक पाकिस्तान में बैठे हुए मेरे पास क्या इख्तियार है कि मैं अमेरिका में बैठे हुए किसी डॉक्टर से या सऊदी अरेबिया में बैठे हुए किसी बिजनेसमैन से पूछूं कि तुमने ये पैसे कहाँ से कमाए हैं। लेकिन मुझे ये इख्तियार हासिल है कि अगर पैसे पाकिस्तान से गया है तो मैं उसको बोलूं कि भाई ये पाकिस्तान से पैसा। मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है राना साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर रहिएगा। यास्मीन साहिबा, डेफिनेटली अगर पैसा वहीं का था तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन मनी ट्रेल की बात है ना असल में। मैं यही सिर्फ बात ही करना चाह रही हूँ। असल में ये 1983 से 1982 से ये बातें हो रही हैं। द फ्लैट्स व्हिच वर परचेज्ड देयर वर परचेज्ड एट दैट टाइम। मेरा ख्याल क्रोनोलॉजिकली वी नीड टू नो कि व्हाट टाइम वर दे परचेज्ड। और उस वक़्त अगर उनके बच्चे जो थे वो माइनर्स थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी बिज़नेस कर रहे थे, तो बड़ी खुशी की बात है कि वो बड़ी कामयाब बिज़नेस करके उन्होंने वहाँ अपने लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली। मनी ट्रेल का मसला है, और मनी ट्रेल के मसले के ऊपर ऑलरेडी इसहाक डार साहब जो आपके इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 40 सफ़े की एक कन्फेशन जो है उसको साइन कर रखा है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जरिए। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये इल्ज़ाम इमरान खान ने नहीं लगाया, ना मैंने लगाया। ये इल्ज़ाम तो दुनिया भर में इट वाज एन इंटरनेशनल एक्सपोजर जिसमें 78 मुल्कों के सरबरा या इम्पॉर्टेंट पीपल व एक्सपोज जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी। एक छोटा सा सवाल है, ऑफशोर कंपनीज पर्टिकुलरली जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, पनामा आइलैंड्स हों या वी आर टॉकिंग अबाउट केमन आइलैंड्स, ये वो हैं वो आर नोटोरियस फॉर टैक्स एवेजन, वो आर नोटोरियस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। दे हैव ऑलवेज बीन नेम्ड एज जो लोग अपने पैसे कहीं छुपाना चाहते हैं, मनी ट्रेल अपनी रोकना चाहते हैं, ये हमेशा उधर ऑफशोर कंपनीज बना के। अब मकसद ये है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बच्चे उनके ऑफशोर कंपनीज का नाम आ गया, और 2 ऑफशोर कंपनीज का नाम इसी प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी कहा है कि 2 नवाज शरीफ साहब के भी नाम आ गई हैं, तो क्या राना साहब से मैं ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कौम का हक नहीं है? अच्छा, इन चीजों का जवाब नवाज शरीफ साहब दें और बताएं। एंड वी आर नॉट बिल्डिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इट इज एक्चुअली हैज बीन बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अदरवाइज एट द मोमेंट। इंतहाई अहम सवाल ये खड़ा होता है डॉक्टर शाह साहब कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से राना साहब ने जिस तरह का उनका सवाल नहीं पूछा जा सकता, तो क्या वाकई में सवाल नहीं पूछा जा सकता? वजीर आजम के बच्चे हैं, वजीर आजम हैं खुद, अब हम सवाल नहीं पूछ सकते पाकिस्तानी अवाम के? जी आपके पैसे आए। सिर्फ एक बात कहूँ यहाँ पे, जी फरमाइएगा डॉक्टर शाहिद साहब। जी,
देखिए मैं एक तो ये जो बात है ना, राना साहब ने बिल्कुल वजह कही कि पैसे अगर बाहर से कमा के बाहर ले जाएं, ये बात बिल्कुल आम लोगों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए बात चलती है, लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी है। मतलब मैं मिसाल के तौर पर किसी से कहूँ कि जी आपका बच्चा जुआ खेलता है, फर्ज करें, और वो कहेगी जी क्या हो गया जुआ खेलता है, वो तो लॉस वेगस में खेलता है, लॉस वेगस में तो कैसीनो में जुआ खेलना जायज है। ये देखिए जो रहनुमा लीडर्स होते हैं ना, जो रहनुमा होते हैं, जब आप बात करते हैं उनकी मोरालिटी की, तो उसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब दुनिया को, मुल्क को, पाकिस्तान को, बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, एक रोल मॉडल बन रहे हैं, तो फिर आप कैसे उन्हें कहेंगे कि आप पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें? आप ये कुछ दलील नहीं है राना साहब माजरत के साथ। यानी आपको एक रोल मॉडल बनना है पूरी दुनिया, और आपको नहीं बनना, पीपल्स पार्टी को भी बनना है, पीटीआई को, सबको बनना है, ब्यूरोक्रेट, ये जितने लोग हैं, कि भाई ये पाकिस्तान जो है सरमायाकारी के लिए। अब देखिए इसाक डार साहब टैक्स नेट बड़ा कर रहे हैं, वो किस मुंह से टैक्स नेट बड़ा करेंगे? वो कहेंगे जी, लोग ताजिर कहेंगे जी आप अपना पैसा तो बाहर रख रहे हैं टैक्स ताकि ना देना पड़े, तो हम क्यों आपको अपने आप को टैक्स नेट में लाएं? इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो लीडरशिप होती है वो आम लोगों की तरह नहीं होती, उनका काम होता है रोल मॉडल बनना। ये कोई दलील नहीं है कि जी अर्जेंटीना में शराब पीना जायज है तो क्या हो गया, पाकिस्तान में तो नहीं पी रहा, ये सवाल तो पैदा हो रहा है कि अखलाकी जवाज के बारे में सारे बात कर रहे हैं, कानूनी है गैर कानूनी है, ट्रेल किधर से आया, वो तो बात का सवाल पैदा होता है ना। लेकिन अखलाकी जवाज तो ये कि वजीर आजम अगर उनके बच्चे अगर दूसरी कंपनियों के अंदर, बाहर के ममालिक के अंदर अगर तमाम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? क्यों वो इन्वेस्टमेंट जो लेकर आना चाह रहे हैं वो इन्वेस्टर इधर क्यों आएगा फिर, जब वजीर आजम के अपने बच्चे बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि यहाँ केस ये बिल्डअप हो रहा है कि बच्चा चाहे 40 साल का हो जाए, बाप उसका जिम्मेदार है। ये अगर केस है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक लिमिट होती है जहां तक आप एक वजीर आजम है जो पाकिस्तान में मसरूफ है, उनको नहीं पता उसके बच्चे ने आज सुबह कैसे उठा, क्या किया, क्या कारोबार कर रहा है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। साहब के हवाले से जो दो कंपनियों की बात देखिए है, आप मिस कर रहे हैं पॉइंट को। मैं तो अपने बच्चों आप में लोग यू आर आर्ग्यूइंग इन अ वैक्यूम। आप माफ करिए आप लोग इन वैक्यूम आर्ग्यू कर रहे हैं। फैक्चुअली बात करें, फैक्चुअली 4 घर मेफेयर में नवाज शरीफ साहब के बच्चों के नाम पे 1993 और 1996 के दरमियान रजिस्टर हुआ है, और वो 4 घर हुसैन नवाज के नाम पे व्हेन ही वाज 13 साल के उम्र था, ये वो 40 साल के नहीं थे, 13 साल की उम्र पे वो घर उनके नाम पे आए हैं। अब ये लोग पूछना चाहते हैं कि 93-96 में उन्होंने कुछ नहीं डिक्लेयर किया था, वो तो टैक्स ही नहीं दे रहे थे, $70 टैक्स 30 साल के लिए उन्होंने दिया है। इसके माने उनका कोई इनकम था नहीं, इधर भी नहीं था उधर भी नहीं था, मगर सडनली 4 फ्लैट्स मेफेयर में वो खरीद सके, तो भाई पैसे किधर से आया? दूसरी बात ऑन अ रिलेटेड सब्जेक्ट, सबसे बड़ा टैक्स हेवन इस दुनिया में कौन सा है? आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान इज द बिगेस्ट टैक्स हेवन। इधर आप अगर टैक्स देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते हैं ना दे, है कि नहीं? सबसे तो कम टैक्स इस मुल्क में, दुनिया में सबसे कम टैक्स। जी साहब जवाब दे दीजिएगा हिलाली साहब की बात का भी और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की बात का। मैं देता हूँ। देखिए ऑफशोर कंपनी जो होती हैं उनमें लोग जो बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो अकाउंट इसलिए खोलते हैं कि जब उनकी किसी बिजनेस का प्रॉफिट ऑफशोर कंपनी में आता है और वहां से वो निकाल के शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो उन ममालिक में टैक्स बहुत कम होता है, और वो ये बहुत सारे लोग इन चीजों को यूज करते हैं, और ये इलीगल नहीं है। अगर वहां पे फॉर गुड रीजन और रॉन्ग रीजन अगर शौकत खानम का पैसा जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं शौकत खानम को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो एक टैक्स हेवन है, टैक्स एडवांटेज है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। जहां तक ब्रिटिश लॉ की इन्होंने बात की कि इंग्लैंड के अंदर कम उम्र बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी लगी, मेरा ख्याल है ब्रिटिश लॉ भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि 18 साल, वो ब्रिटिश लॉ जो है अगर इजाजत देता है, तो ब्रिटेन में तो बड़ी स्क्रूटनी है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का आया, ये पैसा कहाँ से आया। अच्छा राना साहब इसका जवाब कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर मैं वापस आती हूँ, उसके बाद फिर इसका जवाब आप मजीद लेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले राना साहब से जवाब ले रहे थे। राना अफजल खान साहब, वही जवाब को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंडली दूसरा सवाल भी साथ ही मैं आपके पुट कर दूं कि जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इख्तदार में हैं तो डेफिनेटली उनकी तमाम जिंदगी को अवाम भी स्क्रूटनाइज करेंगे, वजीर आजम है आखिर उनके। तो जो 2 ऑफशोर कंपनियां उनके नाम पर आई हैं, उस हवाले से भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या वो भी सवाल करना नहीं बनता, अगर उनके बच्चों की कंपनियां जो है वो सवाल करना नहीं बनता उसके हवाले से। और दूसरा ये कि अगर कमीशन नहीं बन रहा तो फिर क्या किया जाएगा? यानी तमाम रिटायर्ड जजेस ने तो मना कर दिया कि हम कमीशन नहीं का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा जैसे इमरान खान साहब ने डिमांड की है? देखिए, आपके दो तीन सवाल हैं। जो पहला सवाल है कि ऑफशोर कंपनीज अब ये किस दौर की हैं, जिस दौर में उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था। अगर उस दौर की हैं तो उनको तो ये भी मालूम नहीं था कि शायद पाकिस्तान में उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा। अगर उस दौर में उन्होंने कुछ वहां पे काम किया तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उस वक्त, ही वॉज नॉट अ रेजिडेंट पाकिस्तानी। तो उस वक्त वहां के कानून के मुताबिक अगर उन्होंने कोई काम वहां पे किया और पाकिस्तान आने के बाद वो काम बंद हो गया तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। दूसरी बात जो है ये कि कमीशन किस किस्म का होना चाहिए, इसके ऊपर डेफिनेटली मुझसे सीनियर लोग गौर कर रहे होंगे और उस पर अगर ऑपोजिशन इकट्ठी होके एक आवाज से आ जाए कि हम ये चाहते हैं तो गवर्नमेंट विल बी वेरी हैप्पी कि इनकी तमाम लोग एक चीज पे मुत्तफिक हो जाए। लेकिन ये तो तमाम पार्टीज अपनी अपनी मुख्तलिफ डिमांड दे रहे हैं। कोई कह रहा है बाहर से ऑडिट कंपनी ले आए, कोई कह रहा है आप चीफ जस्टिस साहब के कर दें, कोई कुछ कह रहा है। अगर एक चीज आ जाए तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का इत्तेफाक हो सकता है। ठीक है, ये एक चीज की बात करें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, तो फिर पीटीआई, पीपल्स पार्टी और बाकी ऑपोजिशन जमातें क्या एक पेज पर आ जाएंगी या नहीं आएंगी, ये भी सवाल पैदा होते हैं। एक बात अनिका आपकी इजाजत से डॉक्टर साहबा का सिर्फ एक बात कह दूं जी, इसकी तहकीक जी अनिका एक बात सर मैं कहना चाह रहा हूं। जी फरमाइएगा डॉक्टर साहब। जी, इसकी तहकीकात नहीं होंगी, तहकीकात हो चुकी हैं। ये जो 2 कंपनियों के नाम आए हैं ना, ये किसी तहकीकात की यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आई हैं। तहकीकात नहीं होनी, तहकीकात हो चुकी हैं। ये सामने आए हैं वो डॉक्यूमेंट जो तहकीकात के बाद आए, अब इन पे एक्शन होना है। ये बात आप ज़हन में रखें। तहकीकात तो हो चुकी है पिछले 1 साल के दौरान। और ये जो नाम आए हैं 2, मैं दोबारा रिपीट करूं, यूएन और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे आ गए ये नाम। बिल्कुल जी बिल्कुल जी यास्मीन देखिए बात असल में ये है, जिस तरह राना साहब डिफेंड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने थे, आई थिंक व्हाट ही नीडेड टू टेल इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड। जिन 2 ऑफशोर कंपनीज की बात कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे आ गई हैं, वर दे एवर डिक्लेयर्ड, डिड एनीबडी नो एनीथिंग अबाउट इट? मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरीके से मुझे अफसोस होता है कि सारे डिफेंड एक ऐसी चीज़ को करें जिसके बारे में खुद भी उन लोगों को बहुत इल्म नहीं है। आई थिंक व्हाट नीड्स, अगर कोई डिफेंड कर सकता है तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब खुद ही आके डिफेंड कर सकते हैं, और बेहतर यह है कि वो स्टेप डाउन कर दे और फिर एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही शुड देन डिफेंड हिमसेल्फ। अपनी सारी एलिगेशंस जो है उनको क्लियर कर लें। पार्टी तो उन्हीं की बैठी हुई है, फिर कल जाके कुर्सी पर चढ़ के बैठ जाए, कोई मना थोड़ी करने लगा है उनको। लेकिन व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ही हैज टू क्लियर हिज नेम। अगर ये इतनी बड़ी बात ना होती तो मैं राना साहब से पूछना चाह रही हूं कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों रिजाइन कर दिया, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों रिजाइन कर दिया, कैमरून जो है ही इज रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, हर तरफ एक हंगामा शोर मचा हुआ है। अगर ये इतनी अहम नहीं है ऑफशोर कंपनीज, व्हाई इज एवरी अदर कंट्री मेकिंग सो मच ऑफ अ नॉइज अबाउट इट? व्हाई डिड ओबामा से कि जी नए टैक्स रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे बिकॉज ये ऑफशोर कंपनीज जो हैं ये टैक्स इवेजन कर रही हैं सब कुछ? तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है। डिफेंड करने की बात आती भी है या नहीं आती ये भी देखेंगे डेफिनेटली आने वाले वक्तों के अंदर, लेकिन यहाँ वक्त खत्म हो गया है। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से इसको यही रोकना पड़ेगा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जफर हिलाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना अफजल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पनामा पेपर्स और कौन कौन से पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, अभी जो 300 और लोगों की जो फहरिस्तें आनी है, जो डॉक्यूमेंट्स आने हैं, उसके अंदर और क्या क्या बातें आएंगी। जर्नलिस्टिक कैटेगरी की ये सबसे बड़ा इंकशाफ है। 2 टेराबाइट से बड़ा इसका जो है वो डाटा है और इतने लेवल का आज तक दुनिया के अंदर जर्नलिस्टिक इंकशाफात नहीं हुए। अब ये इंकशाफात और किस किस की कश्ती को डबोएंगे ये आने वाले वक्तों में देखेंगे। हमारे शो से आज के लिए इतना ही। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।